converted into liquid. Liquid converted into gas. So when liquid changes to gas, it is known as evaporation. So the definition of evaporation is when liquid changes to gas is known as evaporation. Example, water. When we start boiling the water vapor which are seen, the process is evaporation. One more example is there of water cycle. In summer season, due to sun heat, water evaporates and the process is called evaporation, and there is a formation of clouds. What is there? There is formation of cloud. So the liquid changes into gas is known as evaporation. In short, you can note down the points. Evaporation, liquid changes to gas. Water changes to water vapor or steam. Sir? Sir? हेलो हेलो हाँ मैडम हाँ सर स्क्रीन नहीं आ रही इस पे एक मिनट main screen was there. Okay, so the concept was evaporation when liquid changes to gas is known as evaporation. In water cycle, in summer season, when water evaporates, आपको सबको पता है कि समर सीजन में पूरा जो हीट टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है जिसके वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है. सो लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, दैट इज वाटर चेंजेस इनटू स्टीम. After that, one more concept is there. When water starts boiling, when any liquid start boiling and the temperature raises till 100 degree Celsius, जब 100 degree Celsius तक के टेम्परेचर हो जाता है, so it starts boiling. So that is known as boiling point. Boiling point किसको बोलते हैं? 100 degree Celsius को. So when the liquid starts boiling is known as boiling point. Melting point क्या था? Solid changes to liquid. After that, liquid starts boiling is known as boiling point. Third was evaporation. Evaporation, changes of liquid to gas. Okay, so solid changes to liquid, liquid changes to gas. Now, in reverse, we will see gas changes to water. जब गैस वाटर में कन्वर्ट होता है, the process is known as condensation. The process is known as condensation. What it is said? When water vapor changes into liquid is known as condensation. एक example देखेंगे छोटा सा. We have taken out the ice from the fridge. After that, we have kept at the room temperature. Ice को room temperature पे रखा. It melts. It melts. क्या होता है? ये melt होता है. It melts. So this will be melting point. This will be melting point. After that, that water, if we boil, now the ice convert into water. If the water is boiled, it will be boiling point. Boiling point means the water which is boiling raises to 100 degree Celsius. वाटर जब पूरा हीट होके उसका बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो जब स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज
boiling point. Third, this water changes into water vapor. ये water का changes water vapor में हो रहा है. Water vapor means steam. Water vapors दिखाई देते हैं in rainy season or winter season. If we kept or otherwise we have kept the water on a gas stove, after that the water starts boiling and you see the evaporation process, water vapors raising upwards. If we put some kept lid over it, अगर उस पे अपन ने प्लेट या एक लीड रखा, उसके बाद में ये वाटर वेपर का कन्वर्जन छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में हो जाता है. If we take out that lid, we will see the whole water droplets over the plate on the back side. तो ये जो वाटर वेपर कलेक्ट हुए हैं, ये वाटर वेपर अगेन if we keep aside, we will see the conversion of water vapor into water. पानी गर्म जब करते हैं उस पे अगर अपन ने लीड रखा तो वो जब लीड हटाते हैं और उसको एक अलग से जगह पे रखते हैं तो वाटर वेपर का कन्वर्जन लिक्विड में होता है, दैट इज वाटर. सो व्हेन वाटर वेपर कन्वर्टेड इनटू वाटर, द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. क्या बोला जाता है इसको? कंडेंसेशन. और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया? वाटर चेंजेस टू वाटर वेपर, दैट इज इवेपोरेशन. That is evaporation. Again, I am repeating the points. Ice when melts, melting point. Ice जब melt होना start करता है, that point is called melting point. When water starts boiling, जब water boiling start होता है water का, उसको बोला जाता है boiling point. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और एनी मटेरियल जब वो मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में लिया जाता है. क्या में लिया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर वेपर कन्वर्जन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन. ओके, हेलो सर, पता नहीं. स्टॉप. ओके सर. After that, the water vapor changes into water is known as condensation. ये जो वाटर वेपर है इसका कन्वर्जन जब वाटर में होता है इसको बोला जाता है कंडेंसेशन. Condensation. Okay, so the definition of condensation is when water vapor or steam changes into water. Water vapor changes into steam is known as condensation. Means opposite of evaporation. Evaporation का opposite क्या होता है? Evaporation का opposite condensation. Okay, after that when these water again if we kept in freeze, this water again we have kept in a freezer, it will freeze. The point is known as freezing point. क्या बोला जाता है उसको? Freezing point. When the conversion of water means liquid into solid is known as freezing. क्या बोलते हैं उसको? Freezing. Okay, so first concept we have seen of melting point, melt होना. Boiling point means boil होना. Short इसमें आप याद रख सकते हो. Water vapor, evaporation. After that conversion of that water vapor into water, condensation. And that condensation, the water collected, if we again kept in a freezer, so the process will be known as freezing point. क्या बोला जाता है इसको? Freezing point. Freeze हो रहा है वो. So these are the definitions related to the change of states of matter. और ये सब प्रोसेस के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, that is it depends on the change in the pressure and the temperature. ये सब प्रोसेस में अपन क्या कर रहे हैं?
टेम्परेचर उसका चेंज कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर में रखा, फ्रीजर में से निकाल के, बाद में उसको बॉईल किया, मींस हीट पास की, दैट इज टेम्परेचर आल्सो चेंज, देन अगेन वी हैव केप्ट इन रूम टेम्परेचर, देन अगेन वी हैव केप्ट इन फ्रीजर। तो ये सब जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, ये सब प्रोसेस में क्या हो रहा है, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है। That's why the change in the states of matter depends, काय पे डिपेंड्स रहता है, चेंज इन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। कोई भी मटेरियल का प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करना ही उसको बोलेंगे चेंज इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। एक कंसेप्ट और रह गया, व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, the process is known as sublimation. You can note down the definition. When solid directly converts into gas is known as sublimation. Example is camphor and naphthalene. सबको पता है कैम्फर, कपूर जो घर में यूज होता है। तो ये जब कपूर हीट, यानी जब इसको अपन हीटिंग प्रोसेस से रखते हैं या फिर मैच स्टिक से लगाते हैं, तो क्या होता है, कपूर जो है सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। ओके, एंड नेफ्थलीन बॉल्स आल्सो, नेफ्थलीन बॉल्स विच वी केप्ट इन कबर्ड्स एंड बुक्स एंड स्टोर रूम में रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जैसे अपन ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो नेफ्थलीन बॉल्स है धीरे धीरे छोटे छोटे होते जाते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स जिसको डाबर की गोली भी बोला जाता है। ओके, सो the process in which solid converted into directly gas is known as sublimation or gas converted into solid. Okay, in short, different processes of change of states of matter we have seen. Solid converted into liquid, liquid converted into gas, gas converted into liquid, liquid converted into solid, and lastly solid converted and interconversion of gas. ऐसा डबल वाला एरो क्यों दिया मैंने, क्योंकि सॉलिड का कन्वर्जन गैस में भी होता है और गैस का कन्वर्जन सॉलिड में होता है। तो गैस का जब सॉलिड में कन्वर्जन होता है उसको फ्रीजिंग भी बोला जाता है या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। इन अ फ्रीजर में जब अपन कोई भी सामान रखते हैं, आफ्टर फ्यू डेज वी विल सी द एक्स्ट्रा आइस इज ऑल्सो कलेक्टेड इन दैट freezer box. So the extra ice that is collected and which is not useful for us, that is solid carbon dioxide, जिसमें टेम्परेचर जब हीट का ज्यादा होता है फ्रीज में, तो क्या होता है, गैस का कन्वर्जन डायरेक्टली सॉलिड में होता है एंड दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। तो अभी ये वाले टॉपिक में अपन ने क्या क्या देखा, सॉलिड कन्वर्जन लिक्विड, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में मींस मेल्टिंग, लिक्विड का कन्वर्जन गैस में जिसको अपन बोल सकते हैं इवेपोरेशन। ओके, आफ्टर दैट गैस का कन्वर्जन अगेन लिक्विड, कंडेंसेशन, गैस का कन्वर्जन लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड फ्रीजिंग, सॉलिड कन्वर्जन गैस सब्लिमेशन। The process is sublimation. Okay, so these were the simple definitions we have seen in the change in the state of matter. कोई भी matter जब हेलो, yes मैम, हाँ वो डबल एरो क्यों दिए हुए, वापस रिपीट करो। हाँ रिपीट कर रही हूँ। सॉलिड का कन्वर्जन गैस में होता है। ओके, सब्लिमेशन का डेफिनेशन दो वे से आप लोग लिख सकते हो। When solid changes to gas is known as sublimation, और एक और डेफिनेशन है सब्लिमेशन की, when gas changes into solid is also known as sublimation। इसलिए मैंने यहाँ पे डबल एरो दिया। डबल एरो मीन्स डेफिनेशन आप दो वे से लिख सकते हो तो रॉन्ग नहीं होएगा, बाकी इसमें अगर आप लिखते हो तो रॉन्ग मिलेगा। अगर आप लिखोगे लिक्विड चेंजेस टू गैस इज नोन एज कंडेंसेशन,
ये रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ सब्लिमेशन ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप दो टाइप की डेफिनेशन लिख सकते हो, दैट इज सॉलिड कन्वर्जन इनटू गैस एंड गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। इसलिए मैंने डबल एरो दिया। समझा आप लोगों को? ये डेफिनेशन जो आपको मैंने बताई उसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। इसके आगे का मैम नहीं समझे, एक बार बताओ। हाँ, एक बार और रिपीट करती हूँ। ओके, एग्जाम्पल से देखेंगे अपन, ठीक है? एग्जाम्पल से आपको जल्दी ध्यान में आएगा। घर में अभी समर सीजन शुरू है तो सबके फ्रिज में अपन आइस वगैरह सब रखते हैं। ओके, तो आइस रखने के वक्त क्या करते हैं? सबसे पहले अपन पानी लेते हैं और उसको फ्रीजर में रख देते हैं। तो ये जो पानी अपन ने फ्रीजर में रखा, पानी कौन सी स्टेट में था? लिक्विड में। अपन ने उसको फ्रिज में रखा तो वो काय में कन्वर्ट हो गया? इट चेंजेस इनटू सॉलिड। तो यानी क्या हो रहा है? लिक्विड का कन्वर्जन काय में हो रहा है? सॉलिड में। सबसे पहले अपन ने पानी लिया, उसको फ्रीज में रख दिया, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ये प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीजिंग, क्योंकि कोई भी चीज फ्रीज हो रही है, फ्रीज में रख रहे हैं तो, ठीक है? उसके बाद जब ये आइस अपन बाहर निकालेंगे, आप लोग जैसे आइस बाहर निकालते हो तो थोड़ी देर अगर उसको बॉटल को वैसे रहने दिए तो उसमें वाटर वेपर्स भी दिखाई देते हैं और थोड़ी देर में वो पानी मेल्ट होता है। जो आइस है वो क्या होएगा? पानी नहीं मेल्ट होता है, आइस जो है वो मेल्ट होता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आइस का कन्वर्जन वाटर में हो रहा है। सो सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड है आइस, उसका कन्वर्जन हो रहा है वाटर में। सो ये वाला सेकेंड आएगा। पानी को फ्रीज में रखा, फिर बर्फ को फ्रीज में से निकाला, तो सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, तो ये रहेगा मेल्टिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रहा है। ओके, आफ्टर दैट ये जो लिक्विड है, पानी की बोतल में बर्फ का पूरा कन्वर्जन हो गया। ये वाटर को अपन ने एक वेसल में या एक छोटे से बाउल में निकाला और उसको हीट करने के लिए रख दिया गैस पे। तो क्या होएगा? धीरे धीरे जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या होएगा? 0 डिग्री सेल्सियस जो है आइस, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होएगा। इंक्रीज यानी इट स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब पानी पूरी तरह से बॉइल होता है, गर्म हो जाता है, उसको बोलेंगे बॉइलिंग। और बॉइलिंग होने के बाद में जब ऐसी स्टेट आती है जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद में आप लोगों को उसमें से वेपर्स दिखाई देंगे, जिसको वाफ बोलते हैं, तो दैट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है? लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। जो पानी अपन गर्म कर रहे हैं उसमें से जो पूरे वेपर्स दिखाई दे रहे हैं उसको बोलेंगे गैस। तो दैट लिक्विड कन्वर्जन इनटू गैस इज नोन एज इवेपोरेशन। दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। समझ में आया क्या कंसेप्ट आप लोगों को? सबसे पहले पानी फ्रिज में रखा, पानी बाहर निकाला, उसको गर्म किया। अब ये सब प्रोसेस में क्या हो रहा है? जब वेसल पे अपन लोगों ने एक लीड रखी, एक झाकन रखा, ओके, सो तो वाटर वेपर्स जो है वो प्लेट पे पूरे कलेक्ट होंगे। वाटर वेपर्स क्या होंगे? प्लेट में कलेक्ट होंगे। तो ये वाटर वेपर्स जो कलेक्ट हुए हैं, ये प्लेट निकालने के बाद में अगर अपन ने उसको साइड में अलग से रखा तो वाटर वेपर्स का जो कन्वर्जन है वो थोड़े से क्वांटिटी वाटर में हो जाएगा। उतनी क्वांटिटी नहीं रहेंगी, क्वांटिटी कम रहेंगी, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट जो है उसका कन्वर्जन हो रहा है वाटर में। वेपर्स पूरे कलेक्ट हुए थे प्लेट पे, ओके, so that vapors collected on a plate, if we see after some time at room temperature it changes into water. तो कंसेप्ट में आपको ये याद रखना है, when liquid changes into gas is known as evaporation. इसका एग्जांपल मैंने आपको वाटर साइकिल भी बताया है। वाटर साइकिल सबको पता है। वाटर साइकिल में सन की हीट से क्या होता है? देयर इज इवेपोरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। और जब क्लाउड में से जब बारिश होती है, जैसे रेनी सीजन में या फिर अभी जैसे बिफोर 2 days वी हैव सीन, सो जब वो वाटर वेपर्स जो कलेक्ट हुए हैं, जो रेनी सीजन में बारिश आती है, दैट प्रोसेस इज कंडेंसेशन। उसमें क्या हो रहा है? गैस का कन्वर्जन लिक्विड में हो रहा है, दैट इज कंडेंसेशन। ओके, सो गैस का कन्वर्जन जब लिक्विड में होता है उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। फर्स्ट अपन ने मेल्टिंग देखा, उसके अंदर बॉइलिंग, आफ्टर दैट freezing, evaporation, condensation, and last was sublimation. sublimation में डायरेक्टली सॉलिड का कन्वर्जन गैस में होता है। सब्लिमेशन का डायरेक्टली प्रोसेस काय में होता है? गैस में, एंड गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। आप इसके दो डेफिनेशन लिख सकते हो, एग्जाम्पल अलग अलग आएंगे। अगर आप सॉलिड टू गैस लिख रहे हो देन यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ
कैम्फर। और अगर आप गैस टू सॉलिड डेफिनेशन लिख रहे हो सब्लिमेशन का, देन यू हैव टू राइट द एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। कब लिखना है आप लोगों को ये? व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ओके, so these were the simple definitions in the change in the state of matter. Okay, so one by one we have seen. अगर ये डेफिनेशन में और किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। है किसी को प्रॉब्लम, नहीं समझ में आया? ये सब डेफिनेशन लर्न करने के लिए आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ये घर पे भी करके देख सकते हो। आपको वाटर लेना है, फ्रीज में रखना है, आपको चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं। उसके बाद में जैसे अपन फ्रीजर का जब ऊपर का जो उसका रहता है, वो जब ओपन करते हैं डोर फ्रीजर का, तो एक गैस निकलती है, ठीक है? तो दैट, मैम हाँ यस, मैं वो लास्ट पॉइंट समझा नहीं, वो सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस, हाँ वही तो बता रही हूँ मैं भी आपको, वही बता रही हूँ, ठीक है? तो जब अपन फ्रीजर का डोर ओपन करते हैं, फ्रीज का नहीं फ्रीजर का, तो एक गैस निकलती है, अपने को गैस दिखाई देती है, ठीक है? तो जब फ्रीज बंद रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज होता है, तो जो गैस है उसका कन्वर्जन सॉलिड में होते जाता है। क्योंकि जब अपन फ्रीजर का बॉक्स ओपन करते हैं तो साइड में अपने को पूरा आइस दिखता है, बर्फ दिखता है, जो बर्फ अपन यूज नहीं करते, दैट आइस वी आर नॉट यूजिंग, वो अपन बर्फ जो वो है वाला वो यूज नहीं करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, जो गैस है फ्रीज में उसका कन्वर्जन सॉलिड आइस में हो रहा है, मींस सॉलिड में हो रहा है। सो गैस का कन्वर्जन जब सॉलिड में होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। और लास्टली एग्जांपल अपन ने देखा सबसे इजी, कैम्फर, कैम्फर एंड नेफ्थलीन। ये तो आप लोगों को पता है, कपूर सबके घर में होता है, नहीं कपूर होगा तो नेफ्थलीन बॉल्स तो होते ही है। तो उसको आप क्या करना, कपूर को नहीं तो फिर नेफ्थलीन बॉल्स को, कैम्फर को आप एक जगह पे रख देना, ठीक है? और उसके चेंजेस आपको 3 से 4 दिन में दिखाई देंगे, नेफ्थलीन के, कैम्फर के नहीं। कैम्फर में जैसे ही अपन उसको बर्न करते हैं तो वो एक फ्लेम की तरह दिखाई देता है, ब्लैक कलर का पूरा कार्बन उसमें से रिलीज होता है और बहुत जल्दी, इतने जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो कैम्फर जो है वो सॉलिड में है, द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू डायरेक्टली गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो आइस का एग्जांपल लेके आपको छोटे छोटे पॉइंट्स इसके लिख के रखने हैं। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डबल से रिवीजन करेंगे, लेकिन आप ये वाटर वाला जो एग्जांपल है ये आप कर सकते। ओके, एनीवन हैविंग प्रॉब्लम? किसी को है प्रॉब्लम अभी जो डेफिनेशन और बताए? एक बार और रिपीट करती हूँ रिवीजन के लिए। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका कन्वर्जन कैसे होता है? इंटर कन्वर्जन। सो दिस इंटर कन्वर्जन इज सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड is known as melting. When liquid boils is known as boiling. Liquid changes to gas, it is evaporation. Liquid changes into gas is evaporation. Gas changes into liquid, it is condensation. Gas changes into liquid, it is condensation. Liquid changes to gas, solid, it is freezing. लिक्विड का कन्वर्जन जब सॉलिड में होता है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। लास्टली, सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस टू गैस इज सब्लिमेशन। गैस डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की आप 2 डेफिनेशन लिख सकते हो, एग्जांपल मैंने आपको बताया। मेल्टिंग का एग्जांपल है, वाटर मेल्ट्स 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस है वो जब मेल्ट होना स्टार्ट होता है दैट इज मेल्टिंग। और जब वाटर बॉईल होता है, बॉइलिंग स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक के, दैट इज बॉइलिंग। आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस व्हेन उस पे से वेपर्स दिखाई देते हैं अपने को, दैट इज इवेपोरेशन। एंड इफ वी कलेक्ट दैट वाटर वेपर कलेक्टेड, जो वाटर वेपर कलेक्ट हुआ है उसको अगर अपन अलग से रखेंगे तो इट विल चेंजेस इनटू वाटर, दैट इज कंडेंसेशन। Again that water if we kept in freeze it will freeze, उसका आइस बन जाएगा, that is freezing.
and the whole process solid to gas directly, that is sublimation. तो आपको ये छोटे छोटे डेफिनेशन पॉइंट्स आप लोगों को ये इस फॉर्म में अपने बुक में नोट डाउन करना है और उसके आगे एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है. एग्जाम्पल आप दूसरा भी ले सकते हो. अगर और किसी को डिफिकल्टी रहेगी तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, एनीबॉडी इज हैविंग प्रॉब्लम? और है किसी को प्रॉब्लम? कुछ होगा तो पूछो. मैम गैस टू सॉलिड का और एग्जांपल नहीं है क्या CO2 के अलावा? CO2 के अलावा उसका एग्जाम्पल वैसे तो अभी डेली लाइफ में अपन नहीं लेते हैं. मैक्सिमम मैम O2 नहीं हो सकता क्या? O2 होता है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए. फिर वो प्रोसेस में अपन जैसे रिएक्शन होती है अपने बॉडी में, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है. तो वो आप लिक्विड फॉर्म में लोगे, उसको डायरेक्टली सॉलिड और गैस में नहीं ले सकते हैं. मैम लिक्विड फॉर्म में H2O. हाँ, लिक्विड फॉर्म में तो वाटर है ही ना, H2O. सो दैट इज चेंजेस ना. जो भी अपन वाटर ले रहे हैं दैट इज लिक्विड स्टेट. अभी अपन प्रॉपर्टी देख रहे हैं गैस टू सॉलिड. तो गैस टू सॉलिड के लिए आपको सिर्फ ये इजी एग्जांपल है जिसे आप याद रख सकते हो, दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. और कुछ अगर एग्जांपल है तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे. मैम सॉलिड CO2 मतलब हॉट आइस? हाँ, हॉट आइस जो फ्रीजर में रहता है, जो अपन यूज नहीं करते. यस.